to one and all. I am Payal Shamuvani and I am going to teach you English, and the topic is tenses. So first of all, we need to know what actually tenses are. So tenses means time. Now the question arises, which time? Okay, so the time in which verb takes place are actually tenses. So there are three types of tenses: present tense, past tense and future tense. Before that we need to know what actually verb is. So verb क्या है, पहले हमें ये जानने की जरूरत है. Verbs जो हैं वो है action words. Verbs are action words. All the actions we do in our day-to-day life are action words. सारे ही वो वर्ब जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में करते हैं, जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मतलब टीच कर रही हूँ. सो टीच करना, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो लिसनिंग. बैठे हैं तो सिटिंग. I mean, I'm not writing the gerund form of the verb. I'm just writing the first form of the verb here. Okay, so ring, stand, go, write, read, etc., etc. They are infinite verbs. They are infinite verbs which we do in our day-to-day life. Okay, so all the verb is the main character of tenses. The verb decides which tense we are going to study about or which tense we are going to write about. Okay. So now we are going to talk about different type of tenses. I told you earlier that there are three type of tenses. First is present tense. As the name says, present tense. The tense in which we are living right now is our present tense. Okay. Past tense. The tense, the time which has already gone, which had already gone, is the past tense. And the future tense, which is uncertain tense or the uncertain time, because we do not know what will happen in the future. Okay, so future tenses are uncertain tense or uncertain time. We cannot decide that what will happen in future. Okay, so let us talk about our first tense, which is present tense. And before starting the present tense, I want to tell you all that these three tenses are further subdivided into four more parts, which is simple or indefinite tense, continuous or progressive tense, perfect tense, perfect continuous tense. All the three tenses are further subdivided into these four parts, like present simple tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past simple, past continuous, past perfect continuous, future simple, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Okay, all these types of tenses or the subdivision of these tenses are used into different cases. Okay, so let us study where these things or where these tenses are used. Let us first talk about or discuss about present tense. So present tense is the time in which we are living right now. First part of this tense is present simple tense or the present indefinite tense. Okay, so
पहले हमको ये पता करना होगा कि एक्चुअली ये प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो यूज कहाँ कहाँ आता है, उसके बाद ही हम इसका सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे. फर्स्ट वी विल नो वेयर दिस प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड. ओके, सो the work which we do are in our day-to-day life, like the words like daily, regularly, generally, usually. All the work which we do regularly, usually, generally, daily come into the present simple tense. Okay. So second is our habitual things, like always, never. Third is all the things, all the facts and the truths which are universal. यूनिवर्सल होता है जो हर जगह सेम होता है. ओके, यूनिवर्सल फैक्ट्स जो होते हैं और यूनिवर्सल ट्रूथ्स वो सारे भी प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही आते हैं. कुछ होते हैं कोट्स, कुछ सेइंग्स, वो सारे भी प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही आते हैं. ओके, सो ये सारी वो चीजें हैं जो कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर आती है. ये सारी वो कंडीशंस हैं जो कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर आती हैं. सो नाउ लेट अस डिस्कस द रूल ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस और द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. बोथ आर वन ऑफ द सेम काइंड. ओके, वेदर इट इज सिंपल और इंडेफिनिट, the both words define the present simple tense. So the rule for present simple tense is, which is very very important to know, is subject plus first form of the verb plus s or es plus object. So you can see there is no helping verb in the subject. So we'll add a helping verb in the sentence when we convert the sentence into negative or interrogative or negative interrogative. But for now we need to study how will we form our sentences. Okay, so जब भी हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं तो इसके हिंदी ट्रांसलेशन में लास्ट में आता है ता, ते और ती. ओके, ये लास्ट में जो है साउंड आता है, या लास्ट में जो है सेंटेंस को जब हम कंप्लीट करते हैं तो हमें फॉर्मेशन कुछ इस तरीके का मिलता है जैसे सेंटेंस ता, ते और ती से एंड होता है. जैसे कि my father washes the car. Let us take one more example and then I'll explain you what I want to do or what I want to explain is. I wash the car. Here you can see I have added es after the main verb. Here I have not added es after the verb. So why have I done so? This is because subjects are of two types. First is singular subject and second one is plural subject. So singular subject includes he, she, it, or the name of any one person, anyone also, or thing, etc. But the plural subject contains the words like pronouns or nouns or words like they, we, both, I, you. I changes its state. Okay, I is not always plural. In past continuous tense we will see that I becomes singular, but here I is plural. Okay, so or the name of two or more than two person, things, animals, or the person about whom we are talking about, or the thing about which we are talking about. Okay, so these are our plural subject and these are our singular subject.
सो बेसिकली मैं ये समझा क्यों रही हूँ, इसलिए क्योंकि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे माय फादर इज सिंगुलर, यहाँ मेरे फादर जो है वो सिंगुलर मतलब एक ही पर्सन है। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उनकी वर्ब जो होगी, उनकी जो मेन वर्ब होगी, उसके पीछे हम क्या लगाएंगे, एस या ई एस, ठीक है। और जो ऑलरेडी प्लूरल होगा सब्जेक्ट, जैसे ये ऑलरेडी प्लूरल है, आई इज प्लूरल सब्जेक्ट, ओके। सो वी नेवर एड एस और ई एस आफ्टर द मेन वर्ब इफ वी आर यूजिंग अ सिंगुलर सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अगर हम कोई सिंगुलर सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के अंदर यूज कर रहे हैं तो हम उसके वर्ब के पीछे एस और ई एस कभी भी नहीं लगाएंगे, बट अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब के पीछे एस ई एस लगाएंगे, ठीक है। तो ये समझाने की मैं कोशिश कर रही थी, इसलिए मैंने ये 2 सेंटेंसेस लिखे। अब जैसा कि मैंने बताया कि इनकी एंडिंग जो होती है ता ते या ती से होती है, सेंटेंस का जो एंडिंग होता है वो ता ते या ती से होता है। सो लेट अस ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू हिंदी। जैसे माय फादर वॉशेस द कार, मेरे फादर जो है, मेरे पिताजी जो है, कार को वॉश करते हैं, ओके। सो आई वॉश द कार, सो मैं कार को वॉश करती हूँ। ता ते ती से ओवर हुआ, ये ते से ओवर हुआ और ये ती से ओवर हुआ, ती से, राइट। अगर यहाँ कोई लड़का होता तो मैं कार को वॉश करता हूँ तो वो ता से ओवर हो जाता। तो बेसिकली इसमें लास्ट में साउंड क्या आता है, ता ते या ती का आता है प्रेजेंट सिंपल में। मैंने यहाँ बात की थी कि यूनिवर्सल फैक्ट्स और जो ट्रुथ्स होते हैं उसके लिए भी ये वर्क करता है। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सन जो है वो ईस्ट से ही उगता है, ओके। सो ये एक ऐसी चीज है जो यूनिवर्सल है, ओके, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर, शुगर जो है वाटर में घुल जाती है या घुल जाती है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं चेंज नहीं कर सकती, तुम चेंज नहीं कर सकते। हम यहाँ बैठ के शुगर को डिसॉल्व करें वाटर में या कहीं और बैठ के डिसॉल्व करें, वो डिसॉल्व तो होगी ही, ठीक है। अब हमारा ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल फैक्ट्स। एक और ले सकते हैं, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। डॉग्स जो है वो अनजान लोगों को देख करके बार्क करते हैं, मतलब भौंकते हैं। एंड ये फैक्ट है, ये ट्रूथ है। भले मैं इस कंट्री की हूँ तो भी ये ट्रूथ है, भले मैं कहीं और जाऊँ तो भी वो यही ट्रूथ है कि डॉग्स जो हैं वो अनजानों को देख करके जरूर बार्क करते हैं, मतलब भौंकते हैं, राइट। तो ये वो 3 कंडीशंस थी। कोटेशंस और सेइंग्स बताई थी मैंने इसके बाद। सो कुछ ऐसी बातें जो हमसे जो कोटेड है, मतलब जो बड़ों ने कोटेशंस दी हैं, जैसे कुछ मॉरल्स जो हमें मिलते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। ना मैं इसका टेंस चेंज कर सकती हूँ, ना मैं इस सेंटेंस को चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये भी आएगा प्रेजेंट सिंपल के अंदर, पूरा का पूरा सेंटेंस। ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। सेकंड है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो जहाँ चाह है वहाँ राह है। अब इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ भी चेंज नहीं कर सकती, आई कांट चेंज एनीथिंग इन दिस सेंटेंस। ये कोटेड है, ये भी कोटेड है। जो चीजें कुछ फिलोसोफर्स ने कही है, कुछ सेइंग्स ऐसी जो किसी फिलोसोफर ने कही है, या कुछ ऐसी चीजें जो हमें स्टोरी के मॉरल्स से मिलती हैं, मॉरल वैल्यूज को मिलती हैं, जो कोटेड हैं, ये कोटेड हैं, वो सारी हम प्रेजेंट सिंपल के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब हमें प्रेजेंट कई बार ऐसी कंडीशन में आएगी जब हमें प्रेजेंट सिंपल के इस सेंटेंसेस को नेगेटिव भी करना पड़ेगा, इंटरोगेटिव भी करना पड़ेगा और नेगेटिव इंटरोगेटिव भी करना पड़ेगा। अभी जो सेंटेंस हमारे पास है वो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जो एकदम पॉजिटिव होते हैं वो होते हैं असर्टिव सेंटेंस। These sentences are known as assertive sentence. Okay, so in assertive sentence we have to change in the negative sentences first. Okay, first we will know how to change in the negative sentences. Negative sentences के लिए हम क्या करेंगे? अब negative करने के लिए we need a helping verb and we do not have a helping verb right now in our rule. So what will we do? We'll do one thing. ये जो verb की first form है हम उसी फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पर वापस लिख, क्योंकि जो हमारे रूल में होता है हमें वही वापस यहाँ पर करना होता है। एस को भी हमें हमारे रूल में वापस लाना पड़ेगा, बट हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास रूल्स के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहाँ वहाँ हम डू की फॉर्म्स यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे डू की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे,
जैसे डू और डस होते हैं प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब्स। डू एंड डस आर द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब डू और डस ही क्यों? हम डू की फॉर्म यूज कर रहे हैं और डू का फर्स्ट फॉर्म होता है डू, सेकंड होता है डिड एंड थर्ड होता है डन। ओके, सो डिड जो है पास्ट सिंपल टेंस में यूज होता है, but we'll not discuss that topic right now because right now we are studying about the present simple tense, so we'll not discuss about it, we'll discuss about do. So do तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, इधर से आ गया, फर्स्ट फॉर्म जो थी डू की हमने यहाँ लगा दी, अब इससे हमने कितने बनाएंगे, बट डस कैसे आया, डू के पीछे ईएस कैसे लगा, तो इस ईएस को भी तो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है ना, इस ईएस को भी तो हमें यहाँ पर लगाना है ना, तो इस ईएस को यहाँ पर कैसे लगाएंगे वो मैं तुमको, मतलब डू के पीछे हम ईएस लगा देंगे, जैसे नेगेटिव था तो माय फादर, उसके बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, डस नॉट वॉश द कार। अब ये कैसे हुआ, बहुत सारे चेंजेस आ गए सेंटेंस के अंदर। माय फादर से डू क्यों नहीं आया, डस कैसे आ गया, क्योंकि माय फादर जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा डस आता है, प्लूरल के साथ हमेशा डू आता है। ओके, क्योंकि यहाँ भी सिंगुलर के साथ ही एस ई एस आ रहा था, ये माय फादर के साथ ही एस ई एस आया था, तो एस ई एस वाला जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो हम सिंगुलर के साथ ही यूज करेंगे। अब दूसरी चीज ये है कि जब भी सेंटेंस में एस ई एस आ जाता है तो हम जो हेल्पिंग वर्ब सॉरी मेन वर्ब के पीछे वाला ई एस और एस जो है उसे हटा देते हैं, क्योंकि एस ई एस ऑलरेडी वी हैव रिटन हियर इन द हेल्पिंग वर्ब, हम ऑलरेडी एस ई एस को यहाँ पर प्लेस कर चुके हैं, यहाँ से हटा करके, सो यहाँ पर उसको प्लेस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो डू का सेंटेंस हो या डस का सेंटेंस हो। तो नेगेटिव हमें जब भी करना है तो उसका फॉर्मेशन रहेगा सब्जेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट सिंपल टेंस राइट नाउ, ओके, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, दिस इज द रूल फॉर नेगेटिव सेंटेंस। Now let us further move to the interrogative sentence. What does the word interrogative means? Interrogate means to question someone, to question someone about something. So interrogative sentence questions, mention any question. Okay. So interrogative का मतलब होता है, interrogate का मतलब होता है क्वेश्चन करना, पुलिस ने किसी का इंटेरोगेशन किया, किसी का इंटेरोगेट किया, मतलब उससे क्वेश्चन पूछे, तो यहाँ इंटेरोगेटिव का मतलब यही होगा कि वी आर आस्किंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जब हम पूछेंगे तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड देन वी राइट अ ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना इज मैंडेटरी। ये नहीं लगाया तो मार्क्स जाएंगे, बिकॉज है इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब इसकी पहचान ही क्वेश्चन मार्क है, तो वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। ओके, सो बी वेरी केयरफुल while writing this or changing the sentences from assertive to negative or negative to interrogative or directly assertive to negative sentence. Okay, so let us change it into the interrogative sentence. That is, first we have to write the helping verb, that is does, subject is my father, first form of the verb we do not have to write s-es because does has already mentioned s-es in itself. Okay, so whether it is do or does, we will never write s or es while using do or does in the main verb after the main verb. हम कभी भी जब does और do का यूज करते हैं तो main verb के पीछे कभी भी s es नहीं लगाते हैं, s es हट जाता है। So does my father wash the car? क्वेश्चन मार्क, क्या मेरे फादर कार वॉश करते हैं, ते की साउंड आई लास्ट में, यहाँ पे भी ये था मेरे फादर जो है कार वॉश नहीं करते हैं, ते की साउंड आई लास्ट में। उसके बाद ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लास्ट जो सेंटेंस है, जो टाइप ऑफ सेंटेंस लास्ट हमारे टेंसेस का मेन होता है, वो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो नाउ वी विल स्टडी द नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब नाम से पता चल रहा है कि नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब इसमें नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। हमें क्वेश्चन ना के फॉर्म में पूछना है, यहाँ हमने क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछा, क्या मेरे फादर जो है कार वॉश करते हैं, अब हम पूछेंगे क्या मेरे फादर कार वॉश नहीं करते हैं। सो वहाँ जो क्वेश्चन होगा वो नेगेटिव के साथ साथ इंटेरोगेटिव का भी अपन को बताएगा कि ये नेगेटिव के साथ साथ इंटेरोगेटिव है या इंटेरोगेटिव के साथ साथ ये नेगेटिव है। ठीक है, उसमें दो जो है रूल्स उनका मिक्सचर होगा। जैसे
ओके, सो हमने पढ़ा कि नेगेटिव का रूप क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव. And we have read that interrogative sentence rule is helping verb plus subject plus first form of the verb plus object and question mark. So now we have to mix these two rules to create a new sentence, that is negative interrogative or interrogative negative. That is negative interrogative actually. So negative interrogative sentence. So how will we make the rule for negative interrogative sentence? As the name says interrogative, तो सबसे पहले interrogative में हमें helping verb तो लगाना ही पड़ेगा. Interrogative मतलब helping verb सबसे पहले लगाना है, चाहे वो कैसा भी interrogative हो, positive interrogative हो या negative interrogative हो, right? तो सबसे पहले हम अपनी helping verb लगाएंगे, ये रहा helping. अब है negative, okay? So यहाँ हमने देखा कि helping verb के बाद direct आ जाता था not, तो यहाँ भी helping verb के बाद हमें not लगाना ही पड़ेगा. We have to write not after the helping verb, so not. फिर हम ले लेंगे सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और इंटरोगेटिव है इसलिए वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क ओवर देयर और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. सो लेट अस कन्वर्ट दैट सेंटेंस इनटू द नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो डज, हेल्पिंग वर्ब इज डज. नॉट, वी कैन राइट डज नॉट और वी कैन राइट डजंट. We are now grown ups, so we should write doesn't. Okay, doesn't, yeah, does not. My father, subject is my father. I have earlier told you that we do not have to use ses after the main verb when we are already using do or does in the sentences. So does not my father wash, या doesn't my father wash. फर्स्ट फॉर्म आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, द कार डेली. आई थिंक यही सेंटेंस है, राइट? वॉश द कार. ओके, we didn't have daily in the sentence. So does not my father wash the car, doesn't my father wash the car. क्या मेरे फादर कार वॉश नहीं करते हैं? ये ट्रांसलेशन ऐसा होगा, बट लास्ट में ते ही आया इसमें भी. इसमें हम इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव के एस्पेक्ट को भी जोड़ देते हैं, तो ये क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव हो जाता है. नेगेटिव वे में हम किसी से क्वेश्चन पूछें तो वो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है. ओके, आई होप आप सबको प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ में आ गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा.